let everybody join in. Assalamu alaikum everyone. वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम मैम। So we were on this thing that languages we speak influence the way we think, and it reflects our thoughts, and it also tells people how our human mind works. So we have this example that if some people are racist, or the racist terms are existence in some cultures, so people have racist attitudes towards them. So do anybody remember any example that I have given you last time? Please share the example. जल्दी से शेयर करिए. Yes, ma'am, as you told that if we see the foreign countries, if we talk about the black color in our society, it's common. Means, it's common to call someone black. It doesn't matter too much. But if in foreign countries, or especially in US, we are calling someone black, means we are creating a big division, or it's a big thing there. Very good, very good. और कोई बताए एक और भी एग्जांपल्स हैं, और why it becomes such a big division? वहाँ पे इतना बड़ा मैटर क्यों होता है when we are doing it? Because as ma'am you told that uh, in US the blacks were slave, means they have the history which is means painful for them, uh, so they think, as they remember that
their history is very painful for them. Very good word. The choice of word is very good over here. So, is it still there? The racism is still there, or they have Yes, ma'am, a little bit. a little bit? How? Ma'am, I think racism is always there in human nature and human mind Mm-hmm. because we think ourselves as superiors, and this is not the phenomena of whites, but we all are, you know, affected by this virus, or what we can say, bacteria, or this type of typical thought. This type of thinking is existed in every culture and every society. So, okay, but why is it? Does somebody has any idea why is it? Ma'am, I think uh, I don't know. You are half there, right? That we have a superiority complex, so we think we are superior, and whoever has a dominance or a control or has a power, they have this certain attitudes towards the people who are lesser than them in a power, not in a humanity, but in power. So that's why these terms and these attitudes are. Ma'am, maybe this superiority complex comes from the thrust of power or the greed of power. Yes, 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 very good. Because of that, you need to, when you have a power, you need to maintain it. Yes. And for maintaining it, you have to keep doing the thing that which you did in the first place to assert that power. अगर आपने मार के अगर किसी से मार के उनको सप्रेस किया था, तो आप उस चीज़ को वो रखते रहेंगे, डोमिनेंस उसी चीज़ की लगा रखे रहेंगे. अगर आपने डिवाइड एंड रूल किया था, लाइक इन आवर area, like in Pakistan and India, what foreigners did, what British did, they did the divide and rule, and they make us like, stand against each other. Before British, Hindus and Muslims were not that much into this division, और फिर उन्होंने इस तरह से हम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया, जो अब तक चला आ रहा है, और उसके लिए उनको फ़ायदा भी हुआ. They have still power on us. और ये चीज़ मैम, ठीक. मे बी के जो है आप जब पावर कहते हैं, कहने वाले कि जब जो है पावर हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप हासिल कर लेते हैं किसी न किसी तरीके से. असल बात ये है कि आपको पावर मेंटेन करना जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो पावर मेंटेन करने के लिए आपको वो जो दूसरी कौमें हैं या दूसरी जो नेशन है, उसको किसी और बिजनेस, मंकी बिजनेस के अंदर जो है इंगेज करना पड़ता है. तो उसके लिए फिर आप किसी भी हद तक जाते हैं. अगर आप देखें तो जो है असलाहा और जो ये जो वेपनरी है, इसकी बनाने की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं, वो उसी वेस्ट के पास हैं, जो सबसे बड़ा जो है पीस का आलम बरदार है. Yeah, will go. Because they want to maintain their dominance of the world over the world, so they will do anything to do that. But times are changing. Hopefully, in coming generations, power इस तरह से नहीं रह पाएगी. बिकॉज हम लोगों ने खुद ही अपने लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर दी हैं. सबसे बड़ा इशू जो हम इस वक्त फेस कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम कोरोना वायरस, ये है कि जब हमारे इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हो रहे हैं, लाइक आई डोंट नो, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना कि 25 और 26 अप्रैल को बर्फ़बारी हो रही है. मतलब देर इज नो, आई थिंक सो स्प्रिंग तो मेरे ख्याल से बाहर का सीजन ही खत्म हो गया है ग्लोबल वार्मिंग की मैम, वजह से. क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है. ज्योग्राफिकल जो वो एनवायरमेंट चेंजेस आ रहे हैं, और काफी. इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. दैट व्हाट आई एम यस. सेइंग कि सबसे बड़ी जो अभी वेपनरी की तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब तो हमें अपने कुछ सर्वाइवल का मसला आ गया है, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज इसी तरह से चलता रहा, ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से चलती रही, तो विद इन 10 ईयर्स हम लोग जो हैं वो वही जो कभी फिल्मों में हम देखते थे कि बहुत ही
बुरा हाल हुआ है लोगों का, और 2 कतरे पानी मिल रहे हैं लाइन पे और वो पीते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। होपफुली ऐसा ना हो, लेकिन हम लोगों ने ऐसा काम कर लिया है। हमारे समंदर जो है वो डस्टबिन बन गए हैं, बड़ा वाला, बहुत बड़ा वाला डस्टबिन। कुछ वीडियोस अगर आपको कभी टाइम मिले तो जाके सर्च कीजिएगा, और जब आप देखेंगे तो आप रो पड़ेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो यही सोचते हैं कि दिस इज़ ओनली वन स्ट्रॉ दैट आई एम थ्रोइंग अवे, या एक प्लास्टिक बैग से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मुझे एक प्लास्टिक बैग, एक स्ट्रॉ से मैं जो पूरी लाइफ में तकरीबन बहुत बड़ी स्पीशीज़ का बुरा कर रही हूँ, तो ये भी एक चीज़ है। तो वेपनरी से ज़्यादा हम लोगों को अब इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि हाउ टू सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट, क्योंकि इसके अलावा तो हमारे पास कोई और जगह नहीं है रहने के लिए। वी डोंट हैव एनी अदर प्लैनेट, और अगर होगा भी तो बहुत अमीर लोग ही जाके वहाँ रह सकेंगे। हम तो गरीब लोग हैं, हम तो यहाँ नहीं अफोर्ड कर सकते रहना, मरीख पे क्या जाके रहेंगे। तो ये है बहुत ज़्यादा। So let's start. Everybody has joined. Second example that I have given you about this के hijab for Muslims. तो hijab for Muslim is a pride, ठीक है, लेकिन वेस्ट को ऑपरेशन नज़र आता है। तो वो उसी लिहाज से फिर दे हैव डिफरेंट थाट्स अबाउट अस एंड आवर कल्चर, जिसमें हम उनको या तो एक्सट्रीमिस्ट नज़र आते हैं या फिर बिल्कुल ही अनपढ़ से नज़र आते हैं कि भाई नहीं, हमने अभी तक कोई तरक्की नहीं की। तो दीज टू एग्जाम्पल्स आर देयर दैट वी डिस्कस्ड एंड दैट so language relativity and determination of the thought. In Hopi's language, verbs primary subject matter didn't have any nouns for time. यहाँ पे जब बात होती है कि व्हाट वर्फ और सैपियर ने डिस्कस किया, तो वो बात ये यहाँ बता रहे हैं कि जब उन्होंने वर्फ गए, उन्होंने हॉपी ट्राइब को पे रिसर्च कर रहे थे, तो वहाँ की उनकी लैंग्वेज में उनको पता चला कि उनके पास कोई टाइम के लिहाज से नाउंस नहीं है, उनके पास कोई ग्रामर नहीं है, जैसे कि हमारे यहाँ होती है, मतलब इंग्लिश में होती है बेसिकली पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट टेंसेस। और हम उनको किस तरह से अपने वर्ब के साथ एंडिंग करके बता देते हैं। तो इस तरह की डिटोनेशंस जो थी, इस तरह की होपी ट्राइब में इस किस्म की चीज़ नहीं पाई गई। तो फिर उन्होंने और ज़्यादा इस चीज़ को एक्सप्लोर किया, और इन्होंने जो इसमें एग्जांपल दिए हैं उनमें ये है कि इन चाइनीज़ देयर इज़ ओनली अ सिंगल टर्म लूटो, इन इंग्लिश देयर इज़ अ कैमल। कैमल के वर्ड्स के लिए भी डिफरेंट जो है वो आपके पास वर्ड नहीं होते। इंग्लिश में एक ही वर्ड है कैमल के लिए, लेकिन अरेबिक में बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं कैमल के लिए, ठीक है, कैमल ऊँट के लिए। चाइना में, चाइनीज़ ज़बान में लूटो ही है। तो इसी तरह से उस इनोई स्कीमो लैंग्वेज जो है उसमें स्नो के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एपन, जब वो ज़मीन पे पड़ी हुई स्नो होती है या बर्फ़बारी होती है तो उसको एपन कहते हैं। कानिका कहते हैं जो सॉलिड स्नोफॉल होती है, वो ग्राउंड पे होती है, ठीक है। फिर उत्तक, वो ब्लॉक ऑफ स्नो को कहते हैं, जब वो स्नोस के ब्लॉक बन जाते हैं या पहाड़ियाँ बन जाते हैं तो उसके लिए ये वो वर्ड यूज़ करते हैं। फिर तो इस तरह से हमारे पास, यानी अगर हम इंग्लिश में देखें या फिर हम उर्दू में देखें तो बर्फ़बारी है, बस बर्फ़बारी हो गई है और वो ख़त्म हो गई है। हमने उसको नहीं जाके देखा कि ये सॉलिड फॉर्म पे है, हार्ड फॉर्म में है, या फिर ज़मीन पे पड़ी हुई है तो हम उसको एपन कह रहे हैं। और अगर वो ब्लॉक ऑफ स्नो पड़ा हुआ है या हार्ड फॉर्म में एक ब्लॉक बना के रख दिया गया है या पहाड़ बन गया है तो हम उसको उतक कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो पहाड़ पे स्नो है उसको हम स्नो कहेंगे, हमारे ज़मीन पे स्नो है हम उसको स्नो कहेंगे, वो पिघल रही है तो भी स्नो है, वो जम रही है तो भी वो स्नो है। तो ये बात होगी, मतलब ये बता रहे हैं कि अब कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा व्हेन वी आर ट्राइंग टू डिस्कस द लैंग्वेजेस, ठीक है। तो जब मैं स्नो की बात करूँगी और पर्सन हु इज़ लिविंग इन इंग्लैंड, जब वो स्नो की बात करेगा तो वो सिंपल कहेगा स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है।
लेकिन जब कोई बंदा इनोई स्किमो लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखता होगा तो वो तो कहेगा कौन सी स्नो, ग्राउंड वाली, अपन वाली, कानिका वाली, उतक वाली। मतलब उसका जो जहन है, उसका जो कंसेप्ट है स्नो का, वो डिफरेंट है उसके लिहाज से। उसकी लैंग्वेज उसके थॉट्स को डिटरमाइन करती है। वो सिंपल एक स्नो पे नहीं चलता। ठीक। यस मैम। तो व्हाट इज हैपनिंग व्हेन वी टॉक अबाउट स्नो? तो हम सिंपल स्नो पे आ जाते हैं। मैं आप जिनके एक ही आधी वर्ड्स हैं स्नो के लिए, तो वो हमारे जहन में एक ही स्नो आती है, एक ही बर्फ़ आती है, एक ही बर्फबारी आती है। ठीक है। लेकिन और जो जिनके पास डिफरेंट वर्ड्स होंगे उनके लिए, उनके जहन में डिफरेंट किस्म के कंसेप्ट उनसे रिगार्डिंग आएंगे। जैसे हमारे लिए एक ऊँट है जो कभी कभार हमें सी व्यू पे नज़र आ जाता है और हम उसको देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन अरेबिक में उसके लिए कह रहे हैं 40 के करीब वर्ड्स हैं। तो अब 40 करीब जो वर्ड्स होंगे, वो जाहिर सी बात है वो ऊँट के रिलेटेड होंगे कि वो ऊँट किस तरह का होगा, क्योंकि उनके कल्चर में वहाँ ऊँट का बहुत लेना देना है। तो उन्होंने हर तरीके के ऊँट के डिफरेंट नाम दिए हुए होंगे। जैसे यहाँ पे एस्किमो का ज़्यादा लेना देना है। अब वो क्यों, हम तो ब्लॉक ऑफ स्नो नहीं बनाएंगे, पूछो क्यों नहीं बनाएंगे? एस्किमो किस में रहते हैं? एस्किमोस का पता है आप लोगों को कौन होते हैं? नो मैम, मुझे नहीं पता। और किसी को पता है? जो बर्फबारी वाले इलाके में रहते हैं उनको एस्किमोस कहते हैं ना। वो इग्लूस में रहते हैं, वो इग्लू वाला घर बनाया हुआ होता है, बर्फ के बनाए हुए घरों में रह रहे होते हैं वो। तो वो तो ब्लॉक ऑफ स्नो को याद रखेंगे अपने जहन में, इसलिए कि उनको उससे घर बनाने हैं अपने, और उस तरह के इग्लूस बनाने हैं। या फिर ब्लॉक ऑफ स्नो को वो तोड़ के उसके अंदर से अपनी फिशेस निकालेंगे, या फिर जैसे और उनका कोई लेना देना होगा अपने हिसाब से। हम ऐसा नहीं कहते, हम उसको आइस कह के काम ख़त्म कर देते हैं। उनके पास आइस भी है, उनके पास आइस का वर्ड भी है। ठीक है। यस मैम। अब बिरहा ट्राइब फ्रॉम ब्राज़ील जो है, उसके पास गिनती में सिर्फ 1 2 और उसके बाद मैनी आ जाता है। दे डोंट हैव 1 2 3 4 5 6 टिल 100 और जो भी है, उनकी काउंटिंग ऐसी नहीं है। उनके पास जो अगर काउंटिंग की बात की जाती है तो वो आपको कहेंगे दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, और उसके बाद अगर आप उनको 3 4 या 5 पकड़ाएंगे तो दे विल गो लाइक दैट के नहीं ये तो मैं नहीं है। आप उसे बोलेंगे कि मुझे 5 कीनू दे दो फ़र्ज़ करें, तो वो उसको नहीं समझ में आएगा, बिकॉज उसकी लैंग्वेज में 5 वर्ड ही नहीं है। तो वो उसको क्या लेगा? अगर आप उसको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके भी समझाना चाहेंगे तो वो ये कहेगा या मैनी, ये ले लो, इतने सारे ले लो। और वो मैम फिर मतलब अगर मुझे 5 ही चाहिए तो मैं 5 कैसे लूंगी उससे? वो तो मैं नहीं देगा। वही तो, यही तो बात है कि वो उसके जहन में आएगा मैनी। वो अगर आप उससे कह भी देंगी, आप फिर उसके साथ खुद ही डेमोन्स्ट्रेट करके, यही मैं कह रही थी कि मैं डेमोन्स्ट्रेट करूं उसको, कि मैं कहूँ कि ये 1 ये 2 और ये 1 एंड 2 मुझे दे दो। तो वो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, सही है। फिर उसमें से मैं एक हटा देती हूँ और मैं उसे कहती हूँ कि ये मुझे दो। तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा ये 5 नहीं है, क्योंकि उसके पास 5 का वर्ड नहीं है। वो मुझे जवाब देगा मैनी, मतलब जो भी उनका मैनी का वर्ड होगा जिसको हमने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। ठीक है। तो दिस इज हाउ ही इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू अस। सही।
तो Yes, उनके ma'am. उनके पास जब उनके पास काउंटिंग जो है अगर देखी जाए तो 1 2 के बाद मैनी आ जाती है, क्योंकि ट्राइब्स हैं ये बेसिकली, दे आर नॉट दैट सिविलाइज्ड एज येट, लेकिन उनकी अपनी भी तो लैंग्वेजेस हैं। सही। फिर इन्होंने और रिसर्च से हमें पता चलता है कि नवाहू जो एक और ट्राइब है, उनके पास एक ही वर्ड है ब्लू के लिए भी ग्रीन के लिए भी। जब वो कलर की बात करते हैं तो वो ब्लू को भी ग्रीन एक ही वर्ड से बनाते हैं और ग्रीन को भी एक ही वर्ड्स के नाम से पुकारते हैं। ठीक है। उनके पास कंसेप्ट नहीं है, उनके पास डिफ्रेंशिएशन नहीं है किसके दरमियान, ब्लू कलर और ग्रीन कलर के दरमियान। उनको वो एक ही कलर नजर आता है जिसका उन्होंने कोई नाम रखा हुआ है। वो बहुत मुश्किल सा था, आई कांट प्रोनाउंस इट, तो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। सही। Yes, ma'am. ओके। फिर रशियन हैज 2 सेपरेट वर्ड्स फॉर डार्क ब्लू एंड स्काई ब्लू एंड दे इजली डिफरेंशिएट बिटवीन द बोथ। वैसे ही जैसे नवाहू जो है उन वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते ब्लू और ग्रीन के दरमियान। ठीक है। उनके लिए ब्लू और ग्रीन एक ही कलर है। अगर उनके सामने आप ब्लू कलर दिखाएंगे तो वो उसका नाम लेंगे जो भी उनका नाम होगा। आप फर्ज कर लें वो ब्लू को रेड कहते हैं, वो ग्रीन को भी रेड कहते हैं उनकी लैंग्वेज में। तो अगर आप उनको ब्लू कलर की शर्ट दिखाएंगे तो वो तब भी यही कहेंगे कि इट्स रेड, और ग्रीन कलर की शर्ट दिखाएंगे तो भी वो यही कहेंगे कि इट्स रेड। क्यों? कि उनकी जो कल्चर है उसमें इसका कंसेप्ट यही है कि ये एक ही कलर है और ये दो डिफरेंट कलर नहीं है। तो व्हाट इज हैपनिंग कि देयर लैंग्वेज एंड देयर थॉट प्रोसेस वर्क्स अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर एंड देयर लैंग्वेज दैट इज प्रिविलेंट ओवर देयर। तो अगर आप एक नवाऊ कबीले के बंदे को जाके ब्लू कलर की भी कोई चीज़ देंगे तो उसकी जो लैंग्वेज में उसका कलर है, कलर का नाम है, वो उसी कलर में उसको रखेगा और इसी तरह से वो ग्रीन को भी उसी कलर में रखेगा। सिंपली जब लोगों ने रशियंस को इस बात पे रशिया के पास, हमारे पास जैसे ब्लू है तो हम कहते हैं ब्लू, फिर डार्क ब्लू, स्काई ब्लू। सही। उनके पास वो उसको एक डिफरेंट कलर में लेते हैं। वो ये नहीं कहते कि डार्क ब्लू जो है वो लाइट हो गया तो वो स्काई ब्लू हो गया, या ये ब्लू था और इसका डार्क वेरिएंट जो है वो हमारे पास जो है वो डार्क ब्लू के तौर पे आ रहा है। नहीं, वो बकायदा उसके दो डिफरेंट नाम रखे हुए हैं उन्होंने और उसको वो दो डिफरेंट नाम और दो डिफरेंट कलर की तरह ट्रीट करते हैं। आप लोगों को कुछ याद है कि हमारे पास भी कुछ ऐसे कलर हैं जिनके हमने दो डिफरेंट नाम रखे हुए हैं? मैम बहुत सारे कलर्स के डिफरेंट नाम है। जो एक ही जैसे होते हैं लेकिन डिफरेंट नाम है, जल्दी बताओ। मैम आई थिंक गुलाबी और आतिशी। हाँ, और करीब करीब हो। रेड मैम और मर्जेंडा, हाँ, पिंक। लाल और मैरून। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा जो हमारी अगर इंग्लिश में देखा जाए, ये तो आपने उर्दू के बड़े अच्छे आपने हमें एग्जाम्पल दे दिए, वेरी गुड। तो खुद इंग्लिश वर्ड में भी आप देखें ना, रेड को लाइट करते हैं तो कौन सा कलर निकलता है? पिंक। मैम ऑरेंज। पिंक। पिंक, वेरी गुड। तो हम उसको क्या कहते हैं? हम कभी जाके ये नहीं कहते कि यार राइट लाइट रेड दे दो या डार्क रेड दे दो। ठीक है, वी हैव नेम्स फॉर दोज कलर्स। हम मरून हो जाता है तो डार्क रेड हो जाता है। ठीक है, लाइट हो जाता है तो हम उसको पिंक कहते हैं। तो सिंपली एंड सिंपली सिमिलरली रशिया में भी दे हैव देयर वर्ड्स फॉर इट, कि स्काई ब्लू को और डार्क ब्लू को उनके अपने नाम दिए हुए उन्होंने अपने कलर्स में। सही। यस मैम। हाँ, कोई क्वेश्चन अभी तक? नो मैम। तो व्हाट हैपन इज कि व्हेन वी गोइंग टू ट्रांसलेट इट, तो हमें इस चीज़ को जहन में रखना पड़ेगा। हमें रखना ये पड़ेगा कि अगर हम नवाऊ लिखें इसमें ब्लू और ग्रीन का एक ही वर्ड है तो हमें वो वर्ड आना चाहिए। लेकिन अगर फर्ज करें किसी ने लिखा कि नीला नीला आसमां, हरी हरी वादियां, तो उसको वो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मैम ट्रांसलेट तो समहाउ हो जाएगा लेकिन जो है
उसको जो है ना आप एसेंस नहीं रहेगा वो वाला, मतलब ये जो गुड ट्रांसलेशन नहीं होगी, यस मैम। पुअर ट्रांसलेशन होगी, तो ये होगी। लेकिन यहाँ पे आके फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और फिर यही बात आती है सेपियर वर्फ की कि एवरी लैंग्वेज इज़ यूनिक, सो इट कैन नॉट बी फुली ट्रांसलेटेड इनटू अनदर लैंग्वेज। और वो वही वजह है कि हर लैंग्वेज जो है उसके थॉट्स, उसके वे ऑफ माइंड और वे ऑफ स्पीकिंग और उसकी कल्चरल डोमिनेशन की वजह से होती है। तो जब हम ये बोलें कि नवाओ लैंग्वेज में अगर मैं उसको बताना चाहूँ कि एक वर्ड है कि द स्काई इज़ ब्लू, तो उसके लिए भी मुझे यही करना पड़ेगा, और एंड द फील्ड्स और ग्रीन, तो उसके लिए भी मुझे उनका वही वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उनके कंसेप्ट के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। उनके कंसेप्ट में तो वो एक ही हैं, उनको स्काई भी ब्लू नज़र आता है या ग्रीन नज़र आता है, और ग्रीन फील्ड्स भी ब्लू या ग्रीन नज़र आते हैं। ठीक। यस मैम। फिर जब हम बात करते हैं स्टैटिक सिंटैक्टिकली या ग्रामेटिकली की बात करते हैं, तो इट्स हम बाइसिकल इंग्लिश में क्या करते हैं, डू वी राइड अ बाइक, और हम क्या करते हैं, बाइसिकल चलाते हैं, कैसे चलाते हैं ज़रा बताएं। मैं बाइसिकल चला रही हूँ, इंग्लिश में बताएं इसको। आई राइड अ बाईसाइकिल। हाँ, तो हमारे पास क्या आता है कंसेप्ट जब हम बाइसिकल चला रहे होते हैं, तो मैम मैं बाईसाइकिल के ऊपर बैठकर चला रही हूँ, कॉन्सेप्ट है। तो हम उसके अंदर तो नहीं होते ना घुसे हुए, नो मैम। है ना। लेकिन इटालियंस की जो अपना वर्ब है या जो वो यूज़ करते हैं इसके लिए प्रपोजिशन, तो वो उसमें इन करके करते हैं। इटालियंस राइड इन अ बाइसिकल, ठीक है। ओके। तो दिस इज डिफरेंस। और इन अ कंट्री वो यूज़ करते हैं, ठीक है। when we are saying that I am riding a bicycle in a country, तो ये यहाँ तक तो हम तो ठीक कर सकते हैं कि कंट्री साइड पे वो बाइसिकल चला रहा है, लेकिन वो बाइसिकल के अंदर है ना, उसके ऊपर बैठा हुआ है या सिंपल तरीके से नहीं चला रहा। हमारे पास जब हम इन की बात करते हैं तो क्या कंसेप्ट आता है, when we talk about in, तो हमारे पास क्या कंसेप्ट आता है, अंदर। अंदर। कोई भी चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो, अंदर। अंदर हो, मैं हो, ठीक है। और जब उसके ऊपर होती है तो फिर क्या बोलते हैं हम, ऑन। on, ऑन। अब इसी तरह से जब हम फ्रेंच को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ऑन के लिए दो वर्ड्स हैं, ओ एंड सुर। इसलिए ओ एंड सुख जो है ये आर नहीं प्रोनाउंस करते, इसको हमारे अरबी की तरह खा करके बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब अरबी स्टाइल में ये बोलते हैं आर को, नॉट सेइंग कि किस तरह से वो बोलता है, मैं वो नहीं कर रही। तो उनका भी है, लेकिन इनके यहाँ पे जो ऑन का कंसेप्ट आता है वो क्या आता होगा, कोई गैस करेगा। मैम उल्टा आता होगा, इन का मतलब अगर ऑन है तो ऑन का मतलब इन होता होगा। इनके यहाँ ये है कि इनके हर सरफेस लेवल पे एक ऑन है, ठीक है। एक कबर्ड है, सही, यस मैम। उसके ऊपर भी ऑन है, उसके अंदर जब कोई चीज़ रखी हुई है और उसके अंदर शेल्फ बनी हुई है तो वो भी ऑन है, ठीक। यस मैम। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमारे पास एक कबर्ड आती है और उसके अंदर रखी हुई कोई चीज़ आती है तो उसका क्या कंसेप्ट आ जाता है, इनसाइड द कबर्ड। इनसाइड या इन द कबर्ड, ठीक है। हम उसकी जो सरफेस है उसको इन ही लेते हैं, हम ऑन नहीं करते, मतलब पुट इट इन द कबर्ड, ठीक है, हम ये कहते यस हैं। मैम। वो ये नहीं कहेंगे, वो उसके लिए ऑन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें ओ एंड सख हैं उनके पास दो वर्ड्स जो वो ये इसके लिए यूज करते हैं, ठीक। कोई यस और मैम। इस तरह के आप लोगों के पास कुछ एग्जाम्पल्स हों तो बताइए। जल्दी सोचिए। मैम मैंने जो है वो अरबिक जबान में पढ़ा था, वर्ड था आई फॉरगॉट।
मैम मुझे याद नहीं आ रहा, पर वो था मतलब हाउस वाइफ के लिए था। हम्म, किस चीज के लिए था, सॉरी? हाउस वाइफ के लिए, हाउस वाइफ के लिए। ओह अच्छा। मैम इंग्लिश में जो है वो आप हाउस वाइफ कहते हैं, और उर्दू में आप घरेलू खातून कहते हैं। हम्म। और जो है अरबिक है, अरबिक की जो वो डेप्थ है वो इतनी ज्यादा है कि अरबिक में जो लफ्ज कहते हैं, रबियतुल बैत, सॉरी, हाँ, आई गेट इट, रबियतुल बैत कहते हैं। रबियतुल बैत को अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट करने जाएं तो आपको सिंगल जो है वो वर्ड नहीं मिलेगा इसकी ट्रांसलेशन के लिए, क्योंकि इस वर्ड की डेप्थ बहुत ज्यादा है। रबियतुल बैत का मतलब ये है कि घर की मलिका। घर की मलिका से मुराद सिस्टम एनालिस्ट भी हो सकती है, वो सिस्टम कंट्रोलर भी हो सकती है, वो जो है ना वो ऑल इन ऑल है, आप यूं समझें। लेकिन जो है वो अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो फिर उसके लिए आपको मुख्तलिफ वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, उन सबको गैदर करके फिर आप बाकायदा एक डेफिनेशन तैयार करेंगे उसके लिए, या अगर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो। हाँ, गुड, वेरी गुड, नाइस। और अगर जैसे अभी आपने वर्ड कहा कि हाउस वाइफ का उर्दू में कोई वर्ड है? नहीं मैम, नहीं है। क्योंकि घरेलू खातून तो आपकी अम्मी भी हैं, आपकी बहन भी हैं, अनमैरिड जी, हैं। इफ अ वुमन इज अनमैरिड एंड शी इज मतलब वो घर में रहने वाली हैं, वो काम नहीं करती, अपने भाई बहनों का ख्याल करती हैं, तो क्या वो हाउस वाइफ हो गई? तो नहीं। वी हैव सम difficulties when it comes to translation. तो ये that we Yes, will are going to we are going to study it, and होमर थे हमारे, जेम्स होमर, उन्होंने बकायदा इसको बताया था, प्लान बताया था प्योर एंड अनप्योर ट्रांसलेशन के बारे में, which is going to be our inshallah our next class. तो ये है। और हमारे जो बाकी क्लास के बच्चे हैं, where are their examples? वलीद, आपको एग्जाम्पल दीजिए, आपकी मदर टंग क्या है वलीद? किसी और का, अगर किसी की मदर टंग बलोची है या सिंधी है, तो उसके कोई ऐसे वर्ड्स हों जिनकी मीनिंग मतलब प्योरली जो है वो नहीं मिलते हों आपको इसमें उर्दू में, या इसी तरह से पंजाबी या सराइकी के कोई ऐसे वर्ड्स हों। कल बहुत सारे बच्चे जो कह रहे थे हम लोग पंजाबी हैं, तो पंजाबी कुछ बताएं कि कौन से वर्ड्स हैं जिनका उर्दू या इंग्लिश में फुल ट्रांसलेशन नहीं मिलती। फायजा एंड सना, सोचिए, जल्दी जल्दी सोचिए। मैम वो तो जब हम फ्लुएंट बोल रहे होते हैं, बोलते हुए कुछ वर्ड्स बीच में ऐसे आ जाते हैं, लाइक हमें समझ में आ जाते हैं, घर वालों को आ जाते हैं, लेकिन हम अगर किसी दूसरे को समझाना चाहें तो हमारे पास प्रॉपर उसका कोई वर्ड नहीं होता। वो तो जब बोल रहे होते हैं जब जहन में आता है। ओके, अभी कोई नहीं आ रहा? नो मैम, अभी नहीं आ रहा। कोशिश करें, मैं आपको पूरा 1 मिनट दे रही हूँ, सोचो। मैं जरा म्यूट कर दूँ सूर्यकांत को। जल्दी से ही आपके लिए थोड़ी सी एक एक्सरसाइज मैंने दी है, जल्दी जल्दी सोचिए, चैट में लिखिए कि आपकी मदर टंग में वो कौन से वर्ड्स हैं जो कि उर्दू में आपको या इंग्लिश में आपको उनकी फुल नहीं मिलती। हरी अप मीनिंग, जल्दी लिखिए जस्ट। मैम सिंधी लैंग्वेज में एक वर्ड है जी, मैम, यस यस। सिंधी लैंग्वेज में एक वर्ड है हो जमालो। ये जो है इसका सिंधी लैंग्वेज के अंदर भी कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये है कि जब सिंधीज बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो बहुत मतलब व्हेन एवर दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, इंटरजेक्शन के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। और फिर जो है ना इसे यानी हो जमा लो, और ये किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं हो सकता। इवन अगर इसको हम सिंधी में भी डिस्क्राइब करना चाहें तो नहीं, क्योंकि ये एक फीलिंग है। हम्म, तो फीलिंग्स क्या कहलाती हैं वैसे? मैम फीलिंग्स क्या कहलाती हैं?
फीलिंग, इमोशंस वगैरह जो चीज़ें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं वैसे? मैम ग्रामेटिकल अगर उसमें देखा जाए तो इंटरजेक्शन कहते हैं उसके एक्सप्रेशन को। इसके अलावा उनके लिए एक वर्ड होता है ना हमारा वो प्यारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हाँ, ग्रामर में क्या कहेंगे? ये तो कम्युनिकेशन में आ गए ना सदाम, ग्रामर में क्या कहेंगे? एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स। और जेस्चर्स या एक्सप्रेशंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या वर्ड्स। और इंटरजेक्शंस। नहीं ये मैम इसने सही बोला है, exclamatory मैम एब्स्ट्रैक्ट ये कौन है? Sentences एब्स्ट्रैक्ट or कहने words. वाला कौन है? एब्स्ट्रैक्ट कहने वाला कौन है? जल्दी बताएं। फैसल ओके, आधा बता रहे हो, आधा और भी तो बताओ। मैम इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो थोड़े थोड़े करीब करीब चले गए हैं। Abstract noun. गुड। एब्स्ट्रैक्ट सॉरी मैम। क्या करोगे अपने सीएसएस के पेपर में फैसल? मैम वो तो अभी दूर है। दूर क्या है, तैयारी करो, कुछ भी आ जाता है क्वेश्चन। याद ही है जी, बस क्वेश्चंस करते हैं। तैयारी तो हो रही है। तो चलिए जल्दी लिखें, आप लोगों ने ढूंढे मदर टंग से उर्दू में या इंग्लिश में कोई वर्ड्स? मैम अभी जहन में तो कुछ नहीं आ रहा, मगर अगर सोचें तो बहुत कुछ हो सकता है अगर फ्री टाइम में अगर सोचा जाए, क्योंकि हमारी जो जबान है ना उसमें अल्फाबेटिक 52 अल्फाबेट हैं, तो उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो बहुत अल्फाज निकलेंगे, मगर अभी जहन में कुछ भी नहीं आ रहा। फिर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, फिर आप लोग परेशान हो जाते हो। मैम जी मैम मतलब हर एक लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं या फिर बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो मतलब हमारी तकलीफ होती है, हमारी इन्वेंशन होती है। जैसे कि अगर अ, हम अगर इंग्लैंड का मिसाल लें तो वहाँ से मतलब क्रिकेट की इजाद हुई, तो क्रिकेट का कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है किसी भी लैंग्वेज में। और इस तरह से हमारे बलूची लैंग्वेज में ऐसे बहुत सारे मतलब वर्ड हैं या फिर सेंटेंसेस हैं या फिर बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनका कोई ट्रांसलेशन नहीं है। जैसे कि अभी मैंने एक मतलब मैसेज लिखा था कि तौमना दिल नबे, मतलब अब इसका किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका या क्या फिर और एक होता है? वर्ड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है वो तो बताओ। तो मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें मतलब हमारी तकलीफ होती हैं उनका कोई ट्रांसलेशन नहीं होता। हाँ हम मतलब अगर मैंने कोई पोइट्री लिखी है बलूची में तो इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन नहीं हो सकते, लेकिन हम बाय द थॉट्स बाय द फीलिंग्स हम उस चीज़ को ट्रांसलेट कर सकते हैं। वहाँ पे वर्ड टू वर्ड नहीं हो सकता, लेकिन बाय द थॉट्स हम कर सकते हैं। ओके। जो चीज़ें हमने तख्लीक की हुई या फिर जो हमारी मतलब बनाई हुई चीज़ें हैं वो दूसरे लैंग्वेज में दूसरे कल्चर में मौजूद नहीं होते, तो वहाँ पे उनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता।